بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک لیب ٹیسٹ، ایک امیجنگ کو اسٹڈی کر رہے ہیں جس کا نام ہے تھیلیم سکین۔ تھیلیم سکین اکثر ہم نے نام سنا ہے۔ موسٹ پروبیبلی ہارٹ پیشنٹ جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوتا ہے، مایوکارڈیل انفارکشن ہو چکا ہوتا ہے، ان کی مختلف پروسیجرز کرنے ہوتے ہیں، جیسے پی سی آئیز یا کیبج، یا بعض اوقات کیبج کرنے کے بعد بھی اس ٹیسٹ کو پرفارم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ تھیلیم سکین ہے کیا۔ تھیلیم سکین کیا ہے؟ تھیلیم سکین بیسیکلی اس کو مایوکارڈیل پرفیوژن ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ مایوکارڈیل پرفیوژن ٹیسٹ، مایوکارڈیل پرفیوژن ٹیسٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ایٹیمولوجی، یعنی اس کو تھیلیم سکین کیوں کہا جاتا ہے، پہلی بات ایٹیمولوجی کیا ہے، اس کو تھیلیم سکین کیوں کہا جاتا ہے؟ تھیلیم سکین از کالڈ سو، اس کو اس لیے تھیلیم سکین کہا جاتا ہے بیکاز اٹ انوالوز دا یوز آف اے ریڈیو ایکٹیو سبسٹینس کالڈ تھیلیم، کیونکہ اس ٹیسٹ میں جو ایلیمنٹ استعمال کیا جاتا ہے اس کا نام ہے تھیلیم کیمسٹری میں، جس کا سمبل ٹی ایل ہے۔ ٹی ایل یہ اس کا سمبل ہے تھیلیم۔ بیسیکلی اس کے اندر تھیلیم ایلیمنٹ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو تھیلیم سکین کہا جاتا ہے۔ اس تھیلیم کو آرٹیفیشیلی اس پر بمبارڈمنٹ کر کے اس کو ریڈیو ایکٹیو ایسوٹوپ میں چینج کیا جاتا ہے، جس کو تھیلیم 201 کہا جاتا ہے۔ تھیلیم 201 یہ ایک ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبان مختلف میڈیکل ڈائگنوسس میں، مختلف سکینز میں، جیسے تھائرائیڈ سکین میں آیوڈین ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ یوز کیا جاتا ہے، لنگس سکین میں زینون 133 یوز کیا جاتا ہے، کہیں پر ٹیکنیٹینیم یوز کیا جاتا ہے۔ تو ہارٹ کی سکین کے لیے، ہارٹ کی جو مایوکارڈیم ہے، ہارٹ کی 3 لیئرز ہوتی ہیں، پیریکارڈیم، مایوکارڈیم، اینڈوکارڈیم۔ تو جو ہارٹ کی مڈل لیئر ہے مایوکارڈیم، اس کو یہ چیک کرنے کے لیے کہ اس کو بلڈ سپلائی کتنی جا رہی ہے، مایوکارڈیل پرفیوژن کیا ہے، اس کے ٹیشوز اور سیلز تک بلڈ سپلائی کتنی جا رہی ہے، تو اس کے لیے تھیلیم سکین پرفارم کیا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو تھیلیم سکین از آلسو نون ایز مایوکارڈیل پرفیوژن، اس کا نام مایوکارڈیل پرفیوژن سکین بھی ہے، تھیلیم سٹریس ٹیسٹ بھی ہے، تھیلیم سکین بھی ہے۔ تو اس کے 3 نام ہیں، تھیلیم سکین، مایوکارڈیل پرفیوژن یا تھیلیم سٹریس ٹیسٹ۔ پہلی بات، اٹ از اے نیوکلیئر امیجنگ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیا ہے، ایک نیوکلیئر امیجنگ ٹیسٹ ہے۔ اس کے اندر نیوکلیئر میڈیسن یوز کی جاتی ہے، ظاہر ہے تھیلیم جو تعلق ہے وہ کیمسٹری کے ساتھ ہے، used to evaluate the blood flow to the heart muscles۔ یہ سکین کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہارٹ کے جو مسلز ہیں، مایوکارڈیم، ان کے جو سیلز ہوتے ہیں مایوسائٹس، مایوکارڈیم جو مسکولر لیئر ہے، اس کو بلڈ سپلائی کتنی جا رہی ہے، اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے۔ It is primarily performed to assess the presence of coronary artery disease، کیونکہ جب ہم کسی شخص کو ہارٹ پین ہوتی ہے
प्रोटोकॉल के मुताबिक हम उसकी ईसीजी करते हैं, फिर ईसीजी के बाद उसकी इको पे जाना पड़ता है, फिर उसका एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, फिर एंजियोग्राफी। अब एंजियोग्राफी में हमें पता चल गया कि उसको कॉर्नरी आर्टेरियल डिजीज है, डबल वेसल डिजीज या ट्रिपल वेसल डिजीज। अब फर्दर एवेल्युएट करने के लिए कि उसके मायोसाइट्स को, उसकी मायोकार्डियम को हाउ मच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड, हाउ मच सप्लाई ऑफ ब्लड, जिसको प्रॉपरली मायोकार्डियल परफ्यूजन कहते हैं, परफ्यूजन, वो परफ्यूजन चेक करने के लिए ये वाला टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। बाज़-औक़ात इसलिए कि ये पता चले कि हार्ट अटैक में कितना हार्ट डैमेज हुआ है। बाज़-औक़ात कैबिज करने से पहले, यानी जिसको हम बाईपास सर्जरी कहते हैं, वो करने से पहले कार्डियोलॉजिस्ट देखता है कि हार्ट की, मायोकार्डियम की क्या सिचुएशन है, ऑलरेडी उसको कितनी ब्लड सप्लाई जा रही है, तो उसके लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। थैलियम स्कैन में वाई थैलियम इज यूज्ड, क्वेश्चन ये है कि इस टेस्ट में थैलियम को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। थैलियम जैसे मैंने कहा कि एलिमेंट है जिसको आर्टिफिशियल बम्बार्डमेंट के जरिए इसकी रेडियो एक्टिव आइसोटोप बनाया जाता है 201। इट इज चूजन, ये इसलिए चूज किया जाता है, it is chosen as the radioactive tracer because it behaves in similar manner, because it behaves in similar manner to potassium, which is essential for normal heart muscles function। इसमें थैलियम को इसलिए यूज किया जाता है कि थैलियम सेम बिहेव करता है जैसे पोटेशियम बिहेव करता है, और पोटेशियम क्या है, हार्ट के मसल्स में फ्लो करता है। पोटेशियम, हमें पता है कि हार्ट की जो हार्ट बीट है वो मायोकार्डियम के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से होती है, तो वहाँ सोडियम पोटेशियम चैनल यूज हो रहा होता है। तो थैलियम बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे पोटेशियम करता है। अब इसको यूज करके, इस टेक्निक के जरिए ये देखा जाता है, बड़ा ही मुख्तसर और शॉर्ट, कि गोया जहां जहां हार्ट के जिस जिस टिश्यू तक थैलियम पहुंचेगी, इट मींस वहां तक ब्लड सर्कुलेशन जा रही है। जहां जहां तक थैलियम पहुंचेगी वहां तक ब्लड सर्कुलेशन जा रही है। उसके बाद फिर इसकी गैमा रेज के जरिए, गैमा कैमरास के जरिए इसका स्कैन किया जाता है। तो थैलियम 201 इज चूजन as a radioactive tracer because it behaves in a similar manner to potassium, which is essential for a normal heart muscle function. Thallium 201 is taken up by the heart muscle cells in proportion, यानी हार्ट के मसल्स उतना थैलियम लेते हैं, उतना थैलियम को इनटेक करेंगे जितनी उनको ब्लड सप्लाई मिलेगी। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, यानी इसको हम एज ए रेफरेंस यूज कर रहे होते हैं कि जितना जितना हार्ट के मसल्स, हार्ट के टिश्यूज, हार्ट के सेल्स, मस्कुलर सेल्स जितना उतना थैलियम लेंगे जितना उनको ब्लड सप्लाई जा रही है। थैलियम 21 इज टेकन बाय द हार्ट मसल सेल्स इन प्रोपोर्शन टू द ब्लड फ्लो इनटू द कॉर्नरी आर्टरीज, so the physician can visualize the distribution of blood। इसके जरिए फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट क्या चेक कर रहा होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड मायोकार्डियम, मायोसाइट्स तक कितनी जा रही है टू डिफरेंट एरियाज ऑफ द हार्ट मसल्स यूजिंग अ गैमा कैमरा। इसमें एक गैमा कैमरा यूज किया जाता है, वो इसलिए कि इस आइसोटोप के नतीजे में, रेडियोएक्टिव आइसोटोप के नतीजे में बॉडी से जो रेज निकलती हैं उनको गैमा रेज कहा जाता है। तो गैमा रेज क्योंकि वहां से उमिट होती हैं, उनकी एमिशन होती है, तो उसको कैप्चर करने के लिए गैमा कैमरा यूज किया जाता है, और वो गैमा कैमरा फिर उसके जरिए स्कैन बनाया जाता है। तो फिजिशियन को या रेडियोलॉजिस्ट को या कार्डियोलॉजिस्ट को ये समझ आ जाती है कि हार्ट के मायोकार्डियम के किस किस एरिया तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई जा रही है और किस किस एरिया को इस्कीमिया, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई है, कौन कौन सा एरिया इस्कीमिया को फेस कर रहा है, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई को फेस कर रहा है।
प्रिपरेशन, इस टेस्ट के लिए पेशेंट को कैसे तैयार किया जाता है? बिफोर द टेस्ट पेशेंट में बी आस्क्ड टू अवॉइड ईटिंग और ड्रिंकिंग। इस टेस्ट से पहले मरीज को कहा जाता है कि वो खाने पीने से अवॉइड करे। अवॉइड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग फॉर अ सर्टेन पीरियड, सर्टेन मेडिकेशन सच एज बीटा ब्लॉकर्स, अगर वो कोई मेडिसिन हार्ट के ले रहा है जैसे बीटा ब्लॉकर्स, तो उनको भी टेम्पोरेरी तौर पर बंद कर दिया जाता है। तकरीबन इस प्रिपरेशन में 15 से 30 मिनट यानी 15 मिनट से आधा घंटे का टाइम सर्फ होता है पेशेंट को तैयार करने में थैलियम स्कैन के लिए। इस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले 15 से 30 मिनट पेशेंट के लगते हैं प्रिपरेशन में। उसके बाद क्या होता है, अब प्रिपेयर हो गया मरीज, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कॉल्ड थैलियम 201। अब क्या होता है कि थैलियम 201 का एक कंट्रोल डोज का इंजेक्शन दिया जाता है वेन में, वेन के जरिए पेशेंट की वेन में थैलियम 201 कंट्रोल डोज इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाएगा। उसके अंदर क्या होगा, थैलियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप 201। थैलियम इज टेकन अप बाय द हार्ट, जब आप उसको वेन में इंजेक्ट करते हैं तो वो ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। अब ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी को जा रही है, तो हार्ट के मायोकार्डियम के सेल्स जो कि इसको पिक करते हैं, इसको इनटेक करते हैं, तो जिन जिन सेल्स तक या जिन जिन टिश्यूज तक ब्लड सप्लाई जा रही है वहां वो थैलियम को भी क्या करेंगे, इनटेक करेंगे। तो इसको इसलिए हम बतौर रेफरेंस यूज कर रहे होते हैं। थैलियम 201 is taken up by the heart muscles in proportion to the blood flow to the different areas of the heart। तो हार्ट के मसलन ये हार्ट की मायोकार्डियम है, मैं मिसाल दे रहा हूं। अब इसमें क्या है कि इस एरिया में तो सारा थैलियम को इसने पिक कर लिया होमोजीनियस, लेकिन कहीं पर उसने प्रॉपर थैलियम को इनटेक नहीं किया, तो इसका मतलब है वहां ब्लड सप्लाई या तो कमजोर है या बिल्कुल नहीं है। तो इस स्कैन से हमें ये समझ आ जाती है कि हार्ट की मायोकार्डियम के कौन से पोर्शन को प्रॉपर परफ्यूजन जा रही है ब्लड की और कौन सा पोर्शन महरूम है, डिप्राइव्ड है, या उसको ब्लड सप्लाई कम जा रही है। थैलियम 201 is taken up by the heart muscles in proportion to the blood flow। in proportion, जितनी ब्लड सप्लाई जाएगी उतना थैलियम इनटेक होगा, जितनी ब्लड सप्लाई मायोकार्डियम को जा रही है उतना थैलियम इनटेक होगा। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द इंजेक्शन पेशेंट शैल बी आस्क्ड टू रेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये इंजेक्शन लगाने के बाद पहले उसको प्रिपेयर किया गया, फिर उसको थैलियम का इंजेक्शन लगाया जाता है, फिर उसको कम से कम 15-20 मिनट आधे घंटे तक कंप्लीट क्वाइट रेस्ट में रखा जाता है। क्यों? ताकि हार्ट के सेल्स, हार्ट के मस्कुलर सेल्स उस थैलियम को पिक कर सकें, टेक अप कर सकें। उसके लिए उसको आधे घंटे का टाइम दिया जाता है। आफ्टर द इंजेक्शन पेशेंट शैल बी आस्क्ड to rest for a period of 15 to 30 minutes, then a special camera which is called gamma camera, उसके बाद एक स्पेशल कैमरा जिसका नाम गैमा कैमरा है will be positioned over the chest to capture the images of the heart at rest। the camera detects the radiation emitted by the thallium in heart and creates images that reflects the blood flow। जब हार्ट के सेल्स थैलियम को इनटेक करते हैं तो वो रेडिएशन करेंगे, वहां से रेडिएशन निकलती है वो गैमा रेस की सूरत में। तो उन गैमा रेस को कैप्चर करने के लिए चेस्ट पर, सीने पर गैमा कैमरा फिक्स करना पड़ता है ताकि वो उन रेडिएशंस को कैप्चर करके स्कैन ड्रा कर सके, स्कैन का इमेज बना सके। द कैमरा डिटेक्ट्स द रेडिएशन, वो जो गैमा रेडिएशन हो रही हैं emitted by the thallium in heart and creates the images that reflects the blood flow to different areas of the heart muscle। आगे वही स्टोरी है कि जहां जहां से वो
पिक करेगा, हमें समझ आ जाती है कि जहाँ तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर है और जहाँ पर ब्लड सप्लाई मुअत्तल है। तो ये इमेजेस लेने का वो है। पहले पेशेंट को प्रिपेयर किया 15-20 मिनट, फिर उसके बाद थैलियम का इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद फिर उसको 15-20 मिनट रेस्ट दी ताकि हार्ट के सेल्स थैलियम को इनटेक कर सकें। उसके बाद वहां से गैमा कैमरास के जरिए इमेजेस लिए जाते हैं उस रेडिएशन के। इस टेस्ट के जैसे मैंने शुरू में कहा था कि 2-3 नाम है, थैलियम स्कैन, मायोकार्डियल परफ्यूजन, इसको थैलियम स्ट्रेस टेस्ट भी लिखा जाता है। थैलियम स्ट्रेस टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट में ये होता है कि पहले एक नॉर्मल आपने स्कैन ले लिया, जैसे अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा है, पेशेंट को प्रिपेयर करके थैलियम का इंजेक्शन लगाया, 15-20 मिनट रेस्ट दी, उसकी स्कैन, उसके मसल हार्ट के स्कैन हासिल कर लिए कि कहाँ कहाँ तक ब्लड सप्लाई थी। अब स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाना पड़ता है। डिपेंडिंग ऑन एबिलिटी टू एक्सरसाइज, पेशेंट में अंडरगो अ ट्रेडमिल एक्सरसाइज टेस्ट। इसके बाद पेशेंट को मेडिसिन के जरिए या उसको एक्सरसाइज, उसके हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। यानी पहले तो हम ये देखते हैं कि रेस्ट में कितनी ब्लड सप्लाई हार्ट को जाती है, और फिर स्ट्रेस में कितनी ब्लड सप्लाई जाती है, क्योंकि स्ट्रेस मींस जब मरीज अपनी फंक्शनल लाइफ में दौड़ेगा, भागेगा, कोई टेंशन लेगा, कोई परेशानी लेगा, कोई ओवर लोड वर्क करेगा, तो ये सारा हार्ट का स्ट्रेस कहलाता है, जिसमें हार्ट अपनी कैपेबिलिटी, मैक्सिमम कैपेबिलिटी पे काम कर रहा होता है। तो दूसरा ये देखा जाता है कि स्ट्रेस में कितनी ब्लड सर्कुलेशन जा रही है, इसलिए इसको स्ट्रेस टेस्ट कहा जाता है। उसके लिए पहले हार्ट को एक्टिवेट किया जाएगा, उसको स्ट्रेस दिया जाता है मेडिकेशन के जरिए। अब वो हार्ट मैक्सिमम कैपेसिटी पे बीट करने की कोशिश करता है, उस वक्त फिर एक थैलियम का इंजेक्शन लगाया जाता है कि अब हार्ट कितनी कितनी जो है वो पिक कर रहा है। दिस इज डन टू इंक्रीज द हार्ट रेट एंड स्ट्रेस द हार्ट, allowing for a better assessment of blood flow under the conditions of increased demand. Under the conditions of increased demand, यानी जब हार्ट की मैक्सिमम डिमांड बढ़ जाती है ब्लड फ्लो की, तो उस वक्त हार्ट के मायोकार्डियम को कितनी सप्लाई हो रही होती है। अब इसके लिए क्या होगा, फिर इसमें the images obtained during the thallium scan are analyzed by a radiologist। स्ट्रेस टेस्ट के बाद उसका दोबारा फिर इमेजेस लिए जाएंगे और फिर देखे जाते हैं कि रेस्ट में क्या पोजीशन थी और स्ट्रेस में क्या पोजीशन है। ये डिपेंड करता है कि कार्डियोलॉजिस्ट सिर्फ रेस्टिंग फेज में बाजुकात सिर्फ नॉर्मल थैलियम स्कैन एडवाइस कर देता है, बाजुकात वो कहता है कि नहीं मुझे साथ स्ट्रेस स्कैन चाहिए, स्ट्रेस तो स्ट्रेस एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। पर्पज ऑफ द थैलियम स्कैन, थैलियम स्कैन करने के पर्पजेस क्या होते हैं, मकासद क्या होते हैं। The images obtained during the thallium scans are analyzed by a radiologist or a cardiologist। इसके जरिए जो इमेजेस हमें हासिल होते हैं उनको रेडियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट एनालाइज करते हैं। एरियाज ऑफ द हार्ट विद रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो, एरियाज ऑफ द हार्ट का वो एरिया, हार्ट की मायोकार्डियम का वो एरिया जिनको कम ब्लड फ्लो जा रहा होता है, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो और इनएडिक्वेट परफ्यूजन मे इंडिकेट ब्लॉकेज ऑफ नैरोइंग इन द आर्टरीज। इसका मतलब है कि हार्ट की उस एरिया को, फॉर एग्जांपल जहां पर ब्लड फ्लो कम जा रहा है, इसका मतलब है कि इस एरिया को जो हार्ट जो ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई कर रही है, इस एरिया को वो नैरो हैं या बुलाक हैं, वो नैरो हैं या बुलाक हैं। एरियाज ऑफ द हार्ट with reduced blood flow or inadequate perfusion may indicate the blockage or narrowing in the coronary arteries। अब हमें 2-3 मकासद के लिए ये करते हैं। सबसे पहले टू असेस द लॉस ऑफ हार्ट अटैक,
टू असेस द लॉस ऑफ हार्ट अटैक। सबसे पहले ये चेक करने के लिए कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है तो उसके हार्ट को कितना नुकसान पहुंचा है, कितना पोर्शन हार्ट का डैमेज हुआ है, कितने पोर्शन को ब्लड सप्लाई मुअत्तल हुई है। दूसरी इसका पर्पज होता है बिफोर कैबिज। बिफोर कैबिज यानी कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जिसको हम बाईपास सर्जरी कहते हैं, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कैबिज करने से पहले कार्डियोलॉजिस्ट थैलियम स्कैन कराते हैं ताकि हमें पता चले कि हार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर जो किस हद तक उसको ब्लॉकेज है या कौन कौन से उसके एरियाज डैमेज हो चुके हैं। फिर ये होता है कि जब कैबिज हो जाता है और उसके ग्राफ्ट लगा दिया जाता है तो अब उसकी परफ्यूजन बेहतर होनी चाहिए, मायोकार्डियल परफ्यूजन बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि जो खराब आर्टरी थी उसको बाईपास करके नई आर्टरीज का ग्राफ्ट लगा दिया गया है। तो ग्राफ्ट लगाने के बाद, कैबिज करने के बाद, आफ्टर द कैबिज सर्जरी, आफ्टर द कैबिज सर्जरी, कैबिज सर्जरी करने के बाद फिर उसका थैलियम स्कैन लेना पड़ता है ताकि ये पता करने के लिए कि आया मायोकार्डियल परफ्यूजन, ब्लड ब्लड सप्लाई मायोकार्डियम को बेहतर हुई है या नहीं हुई, हुई है या नहीं हुई। अगर हम थैलियम स्कैन के ड्यूरेशन की बात करें, क्योंकि हमें पेशेंट्स को गाइड करना होता है, अगर हम थैलियम स्कैन के ड्यूरेशन की बात करें तो तकरीबन 15 से 20 मिनट या आधा घंटा पहले प्रिपरेशन के लिए लगता है, फिर उसको इंजेक्शन लगाने के बाद 15 से 20 मिनट रेस्ट दी जाती है, रेस्ट। उसके बाद तकरीबन आधा घंटा घंटा लग जाता है उसकी इमेजेस लेने में। तो ये जो पहले 3 हैं नॉर्मल नॉर्मल स्कैन का टाइम है, प्रिपरेशन, रेस्टिंग और ये इमेजेस, ये उसका नॉर्मल स्कैन का टाइम होता है। ये अगर साथ स्ट्रेस भी करना है तो फिर स्ट्रेस के लिए आधा घंटा मजीद उसको स्ट्रेस देना पड़ेगा, हार्ट को एक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर उसके इमेजेस लेने पड़ेंगे। तो ये फिर सारा तकरीबन 2 से 4 घंटे का प्रोसीजर बन जाता है अगर आपने रेस्टिंग और स्ट्रेस दोनों करने हैं। अगर सिर्फ रेस्टिंग में करना है तो फिर तकरीबन 1.5 घंटे में हो जाता है। तो ये इसका तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली टाइम है 2 to 4 आवर्स, जिसमें आप उसका नॉर्मल प्लस स्ट्रेस स्कैन कर लेते हैं। उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई होगी। ये आज का हमारा जो लेक्चर था वो थैलियम स्कैन पे था। थैलियम स्कैन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिसमें थैलियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप, थैलियम एक एलिमेंट है, उसको आर्टिफिशियल बम्बार्डमेंट के जरिए उसके आइसोटोप्स तैयार किए जाते हैं जिनको TL201 कहा जाता है, फिर उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। थैलियम इसलिए हम इस टेस्ट में यूज करते हैं कि थैलियम पोटेशियम की तरह बिहेव करते हैं, बिहेव जस्ट लाइक अ पोटेशियम, पोटेशियम की तरह बिहेव करता है। तो हार्ट के मसल जो कि पोटेशियम की इनटेक करते हैं तो वो थैलियम की भी इनटेक करेंगे। अब थैलियम जो कि एक कंट्रास्ट होता है, तो जहां जहां जितना थैलियम पहुंचेगा इट मींस उतनी प्रोपोर्शन वहां पर ब्लड सप्लाई की हो रही है। तो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हार्ट का कौन सा पोर्शन ब्लड सप्लाई से महरूम जा रहा है, या ब्लड सप्लाई वहां पर कम हो रही है, या ब्लड सप्लाई वहां पर नैरो, वहां पर आर्टरीज उस एरिया को सप्लाई करने वाली कॉर्नरी आर्टरीज नैरो हैं या ब्लॉक्ड हैं, कितना हार्ट का एरिया ब्लड सप्लाई से मुतासर हो रहा है। इस टेस्ट का ये लुबेलुबाब है, बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो अक्सर हमें क्लिनिक्स पे इसको देखना पड़ता है। इसके पर्पजेज जैसे मैंने कहा, हार्ट अटैक के बाद आया कितना लॉस हुआ है, या बिफोर कैबिज या आफ्टर कैबिज, कैबिज से पहले या कैबिज के बाद भी इस टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।